Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to start a very important topic for class 10th ICSE Geography, that is natural vegetation. So we will see what are the important topics which are to be covered today for our this important lecture. So the first we will see the basic concept of the natural vegetation. After that we will go for the importance of the forest. What are the various importance of the forest, from which simple question is asked for 2 to 3 marks. Now we will cover the type of vegetation. In that we will cover tropical evergreen or rainforest. Second we will go for deciduous or moist forest. In that we will cover deciduous forest. In that we will cover both, that is moist and dry deciduous forest. After that we will go for the tropical desert forest, littoral or tidal forest, montane forest. So these are the important forest which we are going to cover. We will cover all the important terms also. We will cover all the importance and differences also. Economic activity means we will cover everything from where question is asked in the board. Okay. For moving further, we will go for the importance of the important trees and their uses. It is also asked in the examination. Now relation of the forest with the environment, social conservation and what are its various needs. Then we will proceed for the social and agroforestry along with their objectives, which is going to be very important and it is often asked. And the last we will cover up few important words like afforestation, deforestation and all the other such important topics. So from exam point of view, this video is going to be very helpful for you all during the examination. Okay, so without wasting the time, we are going to start now. Okay, see, we will start with the very basic concept, that is natural vegetation. So natural vegetation, the most important thing is its definition. So see, it refers to the plant community. Means what? When we talk about the natural vegetation, it refers to the plant community which has grown naturally without any human assistance and has not been disturbed over a long period of time. यानी आप नेचुरल वेजिटेशन उस प्लांट कम्युनिटी को बोलेंगे जो खुद से ग्रो हुआ है, जिसमें, ठीक है ना, जिसका इंसानों ने कोई उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में हमारा कोई रोल नहीं है. विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, द प्लांट कम्युनिटी विच इज ग्रोइंग इन एनी पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज रेफर्ड टू एज अ नेचुरल वेजिटेशन. So over a long period of time, it also allows its individual species to adjust themselves fully to the climate and the soil conditions. Means this natural vegetation in this particular the plant community which grows, basically there is no any human hindrance, यानी वो खुद से ग्रो कर रही है, वहाँ इंसानों का कोई हिंड्रेंस नहीं हो, और जो भी वहाँ स्पीसीज ग्रो कर रहे हैं दे आर नेचुरली, उसमें ऐसा नहीं कि जो हमारे फायदेमंद लायक है हमने उनको ग्रो किया, जो हमारे काम के नहीं है स्पीसीज है उसको हमने वहाँ से निकाल दिया, रिमूव कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज ऑल नेचुरल and such natural vegetation or such plant community is referred to as a important natural vegetation, and from that these are not localized in any fixed area. एक नेचुरल वेजिटेशन पृथ्वी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं, लेकिन खास बात उसमें ये होगी कि वहाँ मिलने वाले प्लांट्स, एनिमल्स अलॉन्ग विद द क्लाइमेट विल बी वेरी सेम. यानी वहाँ क्लाइमेट, एनिमल और प्लांट जो मिलेंगे वो सारे एक जैसे होंगे. अगर हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वर्ड इज वेजिटेशन. इट रेफर्स टू द असेंबलेज or collection of plant species living in association. Association means mutual help बोल सकते हो आप, with each other to give in a given environmental setup. यानी एक प्लांट स्पीसीज का झुंड होगा जिसमें ये एक दूसरे का हेल्प करके ग्रो कर रहे हैं. एसोसिएशन का मतलब होता है किसी प्रकार का हेल्प, चाहे वो किसी फॉर्म में कर रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर असेंबलेज यानी कलेक्शन ऑफ जो प्लांट्स है ना, उनको आप बोलोगे वेजिटेशन. ओके, अब एक पर्टिकुलर नेचुरल वेजिटेशन में मिलने वाले प्लांट्स को आप क्या बोल रहे हो? आप उनको बोलते हो फ्लोरा, और वहीं एक पर्टिकुलर नेचुरल वेजिटेशन में मिलने वाले एनिमल्स को आप क्या बोलते हो? फाउना. क्या बोलोगे आप उसको? फाउना. अब देखिए फ्लोरा और फाउना में डिफरेंस क्या हो गया. फ्लोरा एक पर्टिकुलर रीजन में, ध्यान से देखें, इट रेफर्स टू द प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में और एक पर्टिकुलर समय में मिलने वाले प्लांट्स को ही आप फ्लोरा बोलते हो. वही अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं ना, आप उनको क्या बोलते हो? फाउना बोलते हो. तो ये आपको जो डिफिनीशन है, आई होप ये आपने लिख लिया.
इसको आप थोड़ा याद कर लेंगे। सिर्फ जो हमने कलर चेंज करके लिखा हुआ है ब्लू कलर से, प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड इज रेफर टू एज ए फ्लोरा एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड इज रेफर टू एज ए फाउना। तो आपको ऐसे याद रख लेना है इसको। डन। ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, हमारा जो आईसीएसई का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है बेसिकली दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच वी आर गोइंग टू गिव, वहाँ से सारे क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ आते हैं। तो आपको अगर आपने मन से पढ़ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ से 2 to 3 मार्क्स का एक जनरल क्वेश्चन होता है कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बताएं, यानी एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। सो व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट? फर्स्ट इज द प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव मीन्स व्हाट? विच इट प्रोड्यूसेस, यानी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको आप प्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर लेंगे। अब देखिए फॉरेस्ट के अंदर से क्या मिल रहा है आपको, क्या बेनिफिट हो रहा है। दैट इज फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द फल मिलते हैं उसे, फ्रूट, लीव्स, टिम्बर, वुड, yarn, artificial silk, these are all considered under the productive function because these are the product of the forest. Okay. Second important function is protective function. Protective function means what? Now you don't think that forest are going to protect you, हाँ, फॉरेस्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अब थोड़ी है, देखो वो क्या करते हैं, आपके सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। डन। प्रोडक्टिव फंक्शन उनका प्रोडक्ट, प्रोटेक्टिव वो क्या बचा सकते हैं, दे कैन protect your soil from getting eroded. Third is regulatory function. Regulatory means what? They will regulate carbon dioxide and water cycle. दोनों साइकिल को ये रेगुलेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना, ग्लूकोज, और क्या निकालता है, ऑक्सीजन। तो ये रेगुलेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये खा रहा है। वाटर साइकिल में वाटर को जैसे प्लांट्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होगा। प्लांट्स के लीव से क्या होता है, ये लीव्स हो गए, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन होगा और ऊपर बनाएगा क्या, क्लाउड, और यहाँ से फिर क्या होने लगेगा, रेनफॉल। ये पानी बह के फिर कहाँ चला गया, अगर मान लो ओशियन के अंदर, फिर वहाँ से इवोपोरेट होके आएगा रेनफॉल के फॉर्म में। तो ये एक वाटर साइकिल है जो फॉरेस्ट मेंटेन करते रहते हैं। अगर अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसको वातावरण में छोड़ते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमको रेनफॉल मिलता है। ओके, आगे बढ़े। एसेसरी फंक्शन, और क्या फंक्शन है प्लांट्स के वो देखें। इट इज हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है होम ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोवाइड्स एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, यानी देखने में सुंदर लगता है जंगल, ठीक है ना। तो जैसे ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हो गया। मिनिमम यू विल हैव टू लर्न 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन होगा व्हाट आर द राइट इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। ये आप जो हमने हेडिंग लिखा है ना वही सीधा लिखेंगे, अंदर थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वेजिटेशन। बेसिकली आवर कंट्री हैव 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसमें से जो पहला है वो कौन सा हो गया आपका, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट। डन। अब खास क्या है इसमें, हमको ये समझ लेना है, इनके कैरेक्टर्स से क्वेश्चन होगा। आपको कैरेक्टर्स इसके याद होने चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी यहाँ के लोग काम क्या करते हैं और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, यही आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा मैं कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो आप देखें, फर्स्ट एनुअल रेनफॉल। व्हेन वी टॉक, हम जब बात करेंगे एनुअल रेनफॉल की तो आप देखें थोड़ा, एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। ओके, ड्राई सीजन छोटा सा होता है। टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होता है 25 to 27 और ह्यूमिडिटी 77% होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दिस प्लेस गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल एंड दिस आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, तमिलनाडु एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब यहाँ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट में कॉन्सेप्चुअली आप बता दो कि क्या होता है, ताकि हमको वो पूरे लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। तब आप ध्यान से देखें। एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जैसे सपोज करें, दिस इज, सपोज दिस टू बी द अर्थ। डन, ये अर्थ हो गया और ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर हो गया ना, सपोज दिस टू बी द इक्वेटर। ये मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, डन। नॉर्थ एंड साउथ, डन। दिस इज इक्वेटर। अब आप ध्यान से देखें, सनलाइट फॉल्स वर्टिकली ओवर दिस इक्वेटर, यानी सनलाइट सीधा गिरेगा इक्वेटर पे। जब इक्वेटर पे सीधा सनलाइट गिर रहा है तो यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी, इस क्षेत्र में हीटिंग ज़्यादा होगी ना, यहाँ पे बोलो आप। जब हीटिंग ज़्यादा होगी, बस यहीं से अपना पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। अब आप हमने मान लिया कि वो यहाँ पे ये ज़मीन है,
यहाँ सनलाइट सीधे गिर रही है तो यहाँ हीटिंग ज़्यादा होगी, सनलाइट सीधे गिरेगी तो हीटिंग यहाँ ज़्यादा होगी। जब हीटिंग ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, इवोपरेशन। इवोपरेशन यहाँ पे क्या होने लगेगा, ज़्यादा। तो सुबह होते ही ना यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब ये इवोपरेशन स्टार्ट हो गया तो 10, 11, 12 बजते बजते यहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या बनने लगता है, क्लाउड। और 3, 4 बजते बजते यहाँ पे देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल, इसीलिए आप इसको क्या नाम देते हैं, 4 o'clock रेनफॉल। डन, ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ बारिश होने का। यानी आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ बहुत ही भयंकर बारिश होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे अगर हम बढ़ जाएं तो अगर रेनफॉल तगड़ा हो गया तो सोच लो, ये मान लो यहाँ पे ये जंगल के हो गया, जंगल की हम बात करें तो जंगल में जितने भी सीड्स गिरते हैं ना, वो सारे सीड्स जर्मिनेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो उनको जर्मिनेट होने के लिए कंडीशन चाहिए, एयर, वाटर, टेम्परेचर, इस जंगल में सारा कुछ मिलता है। अब जितने सीड्स हैं सब यहाँ से जर्मिनेट कर गए। सपोज करो जर्मिनेट करने के बाद ये छोटे छोटे प्लांट्स बन गए। अब आप खुद सोच लो कि जब ये जर्मिनेट कर गए हैं तो अब आपस में ये किस लिए लड़ेंगे, दे विल फाइट अमंग देमसेल्फ फॉर सनलाइट। अब सनलाइट के चक्कर में, ताकि मैं अगर ऊपर हो गया तो मुझे ज़्यादा धूप मिलेगी, देयर इज ए ह्यूज और ग्रेट इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब ये प्लांट्स आपस में एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते हैं और इसी के चलते ना इनका हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये लगभग 60 मीटर 60 मीटर की हाइट टच कर देते हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचे यहीं के फॉरेस्ट मिलते हैं। जब ये ऐसा हो गया कंडीशन तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता है, बिकॉज दिस आर एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज का मतलब होता है दे डू नॉट हैव अ फिक्स टाइम ऑफ फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे आप सागवान अगल बगल आपके होगा, आप उसको देख लें। अब जब ऐसा कंडीशन हो गया तो सनलाइट बिल्कुल यहाँ पे अर्थ सरफेस पे पहुँचता ही नहीं है और यहाँ पे इसीलिए घास नहीं होती है। ग्रासेस आर एब्सेंट हियर बिकॉज सनलाइट इज अनेबल टू रीच हियर। यहाँ मिलने वाले एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आर्बोरियल एनिमल्स मिलते हैं। आर्बोरियल एनिमल मीन्स द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, एग्जाम्पल मंकीज। यहाँ बहुत प्रजाति हैं मंकीज की, हाउलर मंकी, आउल मंकी, स्पाइडर मंकी, एप्स, बहुत सारे मंकीज मिलते हैं। बर्ड्स, सबसे कलरफुल बर्ड्स यहाँ मिलते हैं और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यही होती है। ये कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो वो यही जंगल है। एनिमल्स में ये हो गया, फ्लाइंग स्नेक मिलते हैं और बर्ड्स में मकाउस यानी कलरफुल बर्ड्स यहाँ मिलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट हो गया ना, तो जो जंगली जानवर होते हैं ना वो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच नहीं रहते हैं। जैसे एलिफेंट, राइनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, ये किनारे रहते हैं एड्ज पे और ये अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई इनको दौड़ाए ना तो इसमें आके छुप जाते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रेन फॉरेस्ट। और यहाँ भयंकर इतनी बारिश होती है कि यहाँ से रिवर नाइल जो सबसे बड़ी नदी है ना वो इसी क्षेत्र से निकल रही है। क्लियर? तो आई होप आपका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सफल हूँ। अब आगे देख लें, थोड़ा यहाँ पे टॉपिक वाइज आप देख लेते हैं। एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 25 to 27, now humidity is 77%, and after that you see here, after that when we talk distribution, this place have a very high rainfall, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मैंने आपको बता ही दिया। आप उसका लोकेशन देख लें, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप एंड तमिलनाडु एंड ऑल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, फर्स्ट इट इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। वार्म और वेट, स्ट्रेट सनलाइट की वजह से वार्म हो गया और बारिश की वजह से क्या होगा। ज्योग्राफी में जब भी वर्ड आया वेट, समझ लेना यहाँ बारिश की बात कर रहे हो। इट हैज़ लग्जरियंट वेजिटेशन, ये देखें आप, लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रीज। खास बात क्या है, लग्जरियंट का मतलब देखो यहाँ जो ट्रीज है ना उनको सारे कंडीशन मिल रहे हैं। दे आर गेटिंग ऑल कंडीशन, दे आर गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, दे आर गेटिंग सॉइल, टेम्परेचर, एवरीथिंग। सो दे लिव लग्जरियस लाइफ, मीन्स सब कुछ मिल रहा है। उनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही वो मजबूत होते हैं, ठीक है, ग्रोथ बहुत तेज होती है उनके अंदर। इट रीचेस टू द हाइट ऑफ 60 मीटर, ये खास बात हो गया, यानी ये सबसे टॉलेस्ट ट्री आपको इसी जंगल में देखने को मिलेंगे। आई होप ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर पाया। हियर द कारपेट ऑफ ग्रासेस, यानी ये बोला है कि जो कारपेट ऑफ ग्रासेस है ना यहाँ पे एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया था ताकि आपको तुरंत वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एवरग्रीन trees are not found here because evergreen trees are found here। अब बताओ evergreen trees ही मिलेंगे ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ तो पानी की कमी ही नहीं है। अब plants basically they shed their leaf in the deciduous forest to
प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, क्योंकि उनको पानी की कमी है तो पत्तियों को गिरा देते हैं। लेकिन here because of heavy rainfall these plants do not have a fixed time of flowering and fruiting, this is why they are called evergreen, and these do not have fixed time of fruiting and flowering। ये आपका डिफिनीशन है एवरग्रीन का, ये याद रखना, यही एग्जाम में लिखना है। अगर आपने लिख दिया कि उनको वो पत्ती नहीं गिराते हैं तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। यही मैंने जो लिखा है यहाँ पे डिफिनीशन, आपको यही लिखना होगा। ट्रीज मैंने, क्योंकि अगर बच्चे लिख देते हैं दे आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, 0 मार्क दे विल गेट, क्योंकि उनको क्या मिलना है, क्या सही है, ये जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है ना बोर्ड में, उसको पता होता है किस पे नंबर मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं, रियल कॉन्सेप्ट देता हूँ जिस पे उनको नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो बच्चे क्या गलती करते हैं बाकी जगह पढ़ने के बाद, वो क्या गलत क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप ये ध्यान से सुने इसको। ट्रीज फाउंड हियर आर, अब देखो इसमें ट्रीज का नाम जो लिखा हुआ है उसको आपको थोड़ा सा रटना होगा, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, सीसो, गुर्जन एक्सेट्रा। नाउ विल गो फॉर द इकोनॉमिकल वैल्यूज, यानी वहाँ के उस जंगल का इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है। देखें फर्स्ट, दे हैव वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल ट्रीज, यानी यहाँ जो लकड़ियाँ मिलती हैं ना बहुत ही हार्ड है, ड्यूरेबल है, मतलब बहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं। और लेकिन देखिए इसके बावजूद ह्यूमंस इस फॉरेस्ट को ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। उसका रीज़न देखें, बिकॉज बट ड्यू टू, यहाँ से आंसर है आपका, बट ड्यू टू टैंगल्ड मास ऑफ केन्स, पाम, बम्बूज, फॉर्म्स एंड क्लाइंबर्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट दिस फॉरेस्ट इज नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड। यानी वहाँ जो जंगल होता है ना उसमें बांस वगैरह जो क्लाइंबर्स हैं वो इतने फंसे होते हैं आपस में ना कि दैट फॉरेस्ट इज इम्पेनिट्रेबल, आपको उसको पार करके जाने में बहुत दिक्कत होती है, पहली बात। दूसरी क्या है, अगर सपोज करो इफ़ यू हैव कट द ट्रीज, आपने ट्रीज को कट कर लिया है तो यू नीड ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी दैट वुड। वहाँ तो पूरा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से देयर इज हैवी मड, ट्रांसपोर्ट लेके जाओगे उधर ही ट्रैक्टर या बड़ी मशीनें फंस जाएंगे, उससे नहीं आ पाएगा। इसलिए ये कारण है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी ड्यूरेबल गुड क्वालिटी ट्री, दिस फॉरेस्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वेरी मच डिस्ट्रॉयड बाय द ह्यूमन। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं जल्दी से। दैट इज व्हाट वी कॉल सेकंड वन, दैट इज ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में खास क्या होगा, यहाँ एक वर्ड आया है डिसिडुअस। डिसिडुअस मीन द प्लांट विच सेट देयर लीव फॉर 6 to 8 weeks टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को ना हो इसलिए वो अपनी पत्तियों को 6 से 8 हफ्तों के लिए गिरा देते हैं, और आप इन प्लांट्स को बोलते हो डिसिडुअस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया मॉइस्ट और दूसरा हो गया डिसिडुअस। मॉइस्ट का मतलब यहाँ से थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा है, और ड्राई का मतलब वहाँ रेनफॉल थोड़ा सा कम है। इसी में जो मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है। क्यों? उसका कारण है वहाँ का मिलने वाला चंदन, सैंडलवुड, जो पूरे वर्ल्ड में डिमांडेड है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें इन टॉपिक्स को। फर्स्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट, इसमें ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में अगर हम बात करें, सो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट इसको नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश मॉनसून सीजन में यानी रेनी सीजन में होता है। इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज्यादा भारत में कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, तो आपका डिसिडुअस हो गया। डन। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज द मॉइस्ट एंड सेकंड इज द ड्राई डिसिडुअस। इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हो गया आपका मॉइस्ट डिसिडुअस, जिसको हम अभी देख लेते हैं। इट गेट्स एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ी सी रेनफॉल ज़्यादा है, इसलिए इसका हमने नाम क्या दिया है, मॉइस्ट। 100 to 200 सेंटीमीटर पानी, थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा है। टेम्परेचर की बात करें 27 to 24, आप इसको याद करेंगे। ह्यूमिडिटी 50 to 82%। दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड हिमालयन फुट हिल्स, ईस्टर्न वेस्टर्न स्लोप्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा। ये कुछ खास बातें हैं जहाँ ये मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की जब हम बात करें, द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, सी सबसे खास यही होता है डिसिडुअस फॉरेस्ट में, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, जो आपको याद होना चाहिए। द फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स फॉर 8 to 6 वीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कितने समय के लिए वो पत्तियों को गिराते हैं, 8 से 6 हफ्तों के लिए गिराते हैं। क्यों गिराते हैं, यही क्वेश्चन पूछता है। टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन एंड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी यहाँ ये जहाँ जंगल मिल रहा है ना, यहाँ रेनफॉल सिर्फ रेनी सीजन में होता है, तो पानी ज़्यादा न मिले
तो उस सिचुएशन में प्लांट्स अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ही प्लांट्स के अंदर से पानी इवोपरेट होता है, तो पत्ती ही नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो पानी बच जाएगा। इसके लिए डिसिडुअस प्लांट बेसिकली सेट देयर लीफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल स्पीसीज इज फाउंड ओवर लार्ज एरिया। नेक्स्ट, दे आर कमर्शियली द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड। स्टार मार्क लगा लें आप, यही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है, पूछेगा कौन, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताएं व्हाई दिस फॉरेस्ट इज कमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉइटेड। तो रीजन देना होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक सैंडलवुड। यानी यहाँ पे जो लकड़ियाँ मिलती हैं ना, वो क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। अब सैंडलवुड की क्या ही बात करें, आप कॉस्मेटिक में यूज़ कर रहे हो, यानी इसका शैम्पू आ रहा है, ऑयल आ रहा है, पाउडर आ रहा है, तो ये भारत में और विदेशों में ना इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए सैंडलवुड डिमांडेड है। इसलिए अब उसके चक्कर में ना अगल बगल के जितने पेड़ हैं वो सारे काट दिए जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। अब इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? तो ऑब्वियस है ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो इकोनॉमिकल वैल्यू, दे आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट, दे आर ग्रेट डिमांड ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। ये देख लें आप, सैंडलवुड हो गया, इसमें मूवी भी है, पुष्पा वगैरह आप देखे ही होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विल प्रोसीड। नाउ यू सी, ये देख लें आप, सैंडलवुड हमने लिया है। दिस आर द मोस्ट इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, ठीक है ना। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ लकड़ी काटी जाती हैं और इनके काटने की वजह से ये फॉरेस्ट इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है, सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है ये इंसानों की वजह से। ओके, नाउ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, हियर रेनफॉल इज अबाउट 70 to 100 सेंटीमीटर। इससे पहले जो हमने देखा था मॉइस्ट वाले, वहाँ पे रेनफॉल कितना था? वहाँ पे था 100 to 200, तो उससे कम बारिश है ना, यहाँ पे कितना है? 70 to 100। इसीलिए क्या नाम दे दिया है? ड्राई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो उसको। टेम्परेचर 23 to 27, ह्यूमिडिटी 51 to 58%, फाउंड इन द पेनिसुलर प्लेट्यू, इट इज ऑल्सो प्लेन्स ऑफ बिहार, यूपी एंड अदर प्लेसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, इट लाइज बिटवीन द मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड द थॉर्न फॉरेस्ट। यानी थॉर्न का मतलब, अगर हम थॉर्न की बात करें, आप देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है 70 to 100 सेंटीमीटर, डन। इससे हम पहले हमने देखा था कि जो मॉइस्ट डिसिडुअस था वहाँ 100 to 200 सेंटीमीटर थे। अब जो डेजर्ट की हम बात करें ना, वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो यहाँ डेजर्ट हो गया अगर, तो ये डेजर्ट और इन दोनों के क्या होता है, ये बीच में लाई करता है। यही इस लाइन का कहने का कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़े आप। हियर ट्रीज आर स्प्रेड, इट इज मिक्स्ड विथ पैसेज ऑफ ग्रासेस एंड स्टंट ट्रीज। यानी यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, वो दे आर स्प्रेड मिक्स्ड विद पैचेस, यानी कुछ मिक्स ट्रीज मिलते हैं, अलग अलग वैरायटीज के ट्री मिलेंगे, और स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब यहाँ अब दे विल अडॉप्ट अ जीरोफिटिक कैरेक्टर बिकॉज रेनफॉल इज अ बिट लो। सो स्टंटेड का मतलब छोटे कद वाले पौधे, पेड़ मिलेंगे वहाँ पे, जिसको आप बौना बोलोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा हाइट थोड़ा हो, मतलब 8 फीट 10 फीट इसके आसपास होगी ना, आप उनको स्टंटेड ट्रीज बोलते हैं। ओके, in summer these forests shed their leaf completely to give the forest a look like a कास्ट ग्रासलैंड विद नेकस्ट ट्रीज। ये तो रेनफॉल कम है। डिसिडुअस फॉरेस्ट को नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पत्तियों को गिरा देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ट्रीज प्रेजेंट हियर आर टीक, तेंदू, सॉल्ट, बेर, खेर, एक्सेलवुड एंड अमलटासी। एक्सेलवुड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है, इससे इसका नाम ही रख दिया है एक्सेलवुड। यानी माना जाता है कि अगर आप उसको बहुत तेज़ी से अगर उस पर काटने के लिए मारोगे ना, तो वो जल्दी कटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या नाम रख दिया इसका, एक्सेलवुड। ओके, इकोनॉमिकल वैल्यू, दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, फ्रूट्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। नाउ जो इकोनॉमिकल वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यही है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर। बस ये आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करेंगे मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट की, तो यही वर्ड आपको लिखना है क्वेश्चन का, राइट द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ दिस मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मीन्स दैट फॉरेस्ट इज क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यानी इसको काट दिया गया है और उस पर क्या करते हैं, हम खेती करते हैं। खेती का मतलब हो गया अपना एग्रीकल्चर, डन। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट। यानी देखिए खास क्या है ना, ये फॉरेस्ट में जो मिलने वाले प्लांट्स होते हैं, दे हैव जीरोफिटिक कंडीशंस, एडेप्टेशंस। जीरोफिटिक का मतलब होता है दे आर वेरी मच एडेप्टेड टू एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस। तो डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए। जीरोफिटिक का मतलब प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, आप उनको क्या बोलोगे, जीरोफिटिक बोलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हियर रेनफॉल, मैंने पहले ही बोला था रेनफॉल यहाँ पे कम होगा, लेस देन 50 सेंटीमीटर, एंड एनुअल टेम्परेचर इज 25 to 27, यानी ये काफ़ी ज़्यादा ही है। ह्यूमिडिटी 47% के आसपास होती है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें आप, भारत में मिलने वाली जगह जैसे वेस्ट पंजाब,
हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा बहुत सारे जगहों पे ये मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम अब। ये सबसे खास देख लें आप इसमें, ये दिस इज कैक्टस, ये क्या शो कर रहा है आपको, कैक्टस शो कर रहा है। ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करने के लिए बेस्ट है। यहाँ देख लें आप, यहाँ बबूल्स है, श्रब्स, यहाँ ये कुछ इस टाइप के वेजिटेशन ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम, अब चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। These forests have xerophytic type of plants, plants which are adapted to arid and semi-arid condition. So you have to please learn these definitions. Okay, ये आपको definition तो confirm याद होने चाहिए, which have adapted to arid and semi-arid condition. Due to paucity, paucity word का मतलब होता है ना less rainfall, here trees have stunted with large patches of coarse grasses. Stunted का मतलब बौने ट्री होंगे, large patches of coarse grasses. coarse का मतलब होता है ना पतली घास, जैसे आप देखोगे, जैसे गांव देहात में आप अगर आ रहे हो ना, या शहरों में होंगे तो बड़ी बड़ी रोड के किनारे बहुत पतली पतली बड़ी बड़ी घासें होती हैं, ग्रास होती हैं, जिसको आप कोर्स बोलते हो। कोर्स का मतलब होता है थिन एंड लॉन्ग। ओके, पतलो वगैरह बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब ये काफ़ी बड़ी बड़ी ये ग्रास होती हैं पतली पतली, इसको आप अगर तेज पकड़ेंगे ना तो अंगुली को काट देती है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। दे हैव जीरोफिटिक वेजिटेशन। नाउ व्हाट आर द जीरोफिटिक वेजिटेशन, ये कंपटीशन के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आपके एमसीक्यू में बार बार आ रहा है पिछले 2 सालों से। पिछली बार आया था संकन स्टोमाटा, यानी संकन स्टोमाटा किस में मिलता है आप बताएं, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप इसके कैरेक्टर्स जरूर याद रखें। दे हैव लॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट क्यों है? इन द सर्च ऑफ वाटर, यानी पानी को ढूंढते ढूंढते जो इसकी जड़ें हैं ना वो काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं। संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा का मतलब स्टोमाटा नॉर्मली लीफ के सरफेस पे होता है, मोनोकॉट डाइकॉट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन लीफ के सरफेस पे होगा। संकन का मतलब अगर ये अंदर की तरफ धंस गया ना तो वहाँ सनलाइट सीधे नहीं पहुँचती है, तो ये ट्रांसपिरेशन कम करने का बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट way to reduce transpiration. So sunken stomata is found in xerophytic plant. Cuticle thick layer on the leaf, यानी लीफ हो गया ना अगर सपोज करो आप, तो जैसे ये आप देखो वैसलीन वगैरह का प्रचार देता है, इसके ऊपर वो पूरा लगा देता है ना, थिक क्यूटिकल एक मोम का परत मिलता है जो ट्रांसपिरेशन कम करने का काम करता है। लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स, यानी अगर आप कैक्टस देख रहे हो ना, कैक्टस, ये कैक्टस हो गया, तो इसमें जो ये ऐसा दिख रहा है ना थॉर्न, बेसिकली ये कांटा नहीं है, ये इसका लीफ है। अब ये इसको आप क्या बोलोगे फिर? स्पाइन। सो इन द केस ऑफ दिस कैक्टस दिस लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स, यानी जो पत्तियां हैं ना वो अपने आप को स्पाइन्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन वो प्लांट रोक लेता है। आई होप दिस इज क्लियर। दे हैव सिम्बियोसिस, ये अगला एक एडेप्टेशन है। सिम्बियोसिक रिलेशनशिप का मतलब इनका ना दूसरे जानवरों के साथ रिलेशन होता है, दोस्ती का रिलेशन होता है। जैसे सपोज करो अकेसिया हमने एग्जाम्पल लिया है, बबूल का प्लांट है, उस पर एंट चींटियां रहती हैं। अगर मान लो अगर आप उस पर चढ़ गए तो चींटियां आपको काटने लगेंगी, तो प्लांट तो बच गया। अब इसमें प्लांट को क्या फायदा है कि आप मतलब एनिमल से और ह्यूमन से चींटियां उनको बचा लेती हैं, तो चींटियों को क्या बेनिफिट है? बेसिकली एंट्स वो अकेसिया का जो प्लांट है ना उसका गम, यानी जो उसके अंदर से गम निकलता है ना, उसको खाते हैं, तो दोनों को फायदा हो गया। ऐसे रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो? सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, ये इनके अंदर मिलता है। ओके, दिस प्लांट्स रिमेन लीफलेस मोस्ट ऑफ द ईयर। ट्रीज फाउंड इन दिस आर बबूल, डेट पाम, बेर, खेर, नीम एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जो यहाँ मिल रहे हैं, जो खास है इस ट्री के लिए। ओके, डन। नेक्स्ट इकोनॉमिकल वैल्यूज, जो इसमें इकोनॉमिकल वैल्यूज की हम बात करें, फर्स्ट इसमें देख लें आप, बेर हो गया। बेर का मैंने नीचे डायग्राम भी ले लिया, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, दिस इज बेर। इसका इट इज ईटन रॉ, इसको कच्चा हम लोग खाते हैं और ये त्योहारों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। शंकर भगवान का जो पूजा वगैरह करते हैं ना उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पिकल्स, अचार वगैरह बनाते हैं। बेड स्ट्रीट्स, यानी जो उसके बेड का जो नीचे का पैर होता है ना, बहुत मजबूत वाला भाग, वो इससे बनाया जाता है। बोट रिब्स, यानी बोट रिब्स का मतलब सपोज करो ये सामने से बोट हो गया ना, तो ये जो लकड़ी होती है ना बीच में जो किनारे किनारे लगती है, ये इसी की होती है, यानी ये बहुत मजबूत लकड़ी चाहिए। सो इट हैज़ वेरी स्ट्रांग वुड। नेक्स्ट विल गो फॉर द बबूल। सी दिस इज बबूल हियर इन द सेकंड डायग्राम। इट बार्क, यानी इसका छिलका और इसके अंदर ना, इसके ऊपर ना गम निकलता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लोकल लैंग्वेज में वी कॉल इट, इसको लासा वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। इतना छोटा छोटा गम निकलता है, दैट हैव मेडिसिनल वैल्यू। ये हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, टिथ के लिए, ठीक है ना। इससे लोग गाँव वगैरह में मंजन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। डेट पाम, खजूर की बात करें तो आप देख लो यहाँ पे डायग्राम में है खजूर। ईटन रॉ, इसको कच्चा खाते हैं। यूज एज एंड एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट का मतलब होता है ना, जैसे कि मान लो
खांसी वगैरह में मतलब कि ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में काम आता है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया है, एस्ट्रिजेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिरप, दवा वगैरह बनाने में, खांसी से संबंधित दवा बनाने में, कोल्ड फीवर में ये बहुत ही फायदेमंद है। नीम की बात कर लें तो आपको तो पता ही है, नीम सदाबहार प्लांट है। नीम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसमें नीम ऑयल, लीव्स एंड बार्क्स आर यूज फॉर मेकिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इंसेक्टिसाइड्स, यानी इंसेक्ट्स को मारने की दवा बनाते हैं। और मार्केट में बहुत सारा फेशियल वगैरह, फेशियल का क्रीम वगैरह आ ही चुका है, आप देख ही रहे हो, नीम के नाम से ही फेमस है। तो ये बहुत ही ग्रेट डिमांडेड है और ये कहाँ मिलता है, दिस इज ऑल फाउंड इन द जीरोफिटिक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। फॉरेस्ट दिस आर फाउंड इन द वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स का मतलब वो जगह जो जहाँ पे जमीन और पानी, जैसे मान लो अगर जहाँ हाई टाइड लो टाइड आ रही है ओशियन के किनारे, तो अभी मान लो एक बार हाई टाइड आएगी तो पानी जमीन के ऊपर आ गया, लो टाइड आ गई तो पानी चला गया। तो ये हमेशा वो जगह जो हमेशा गीली होती रहती है ना, वहाँ हमेशा कीचड़ जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। वहीं आपको जो ये जंगल मिलेगा ना, जो ट्रीज मिलेंगे, दिस आर लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट। दिस आर वेयर वाटर इज यूजुअली नियर द लैंड सरफेस, यानी ये कहाँ होगा, पानी लैंड सरफेस के पास। रेनफॉल इट इज लेस देन 200 सेंटीमीटर, ये खास है इसमें। टेम्परेचर 26 to 29। डिस्ट्रीब्यूशन इट इज फाउंड, यहाँ से क्वेश्चन था इस बार, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट देखें। इट इज फाउंड इन द वेट मार्सी एरिया इन रिवर, मतलब मार्सी एरिया का मतलब जहाँ, मार्सी एरिया किसको बोलते हो आप, जहाँ पे पानी सपोज करो वाटर स्टैग्नेंट हो गया और वहाँ कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस चढ़ रहा हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उसमें से मीथेन गैस निकलता है उसके डिकम्पोजिशन से, आप उस एरिया को मार्सी एरिया बोलते हो। ठीक है, कीचड़ जैसा ही स्ट्रक्चर होगा। रिवर डेल्टास, यानी रिवर जब आके, अब जैसे गंगा रिवर आके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है ना, तो यहाँ डेल्टा बनाएगी, वहाँ मिलेंगे ये। टाइडल और अदर स्वैम्पी एरियाज, यानी जहाँ टाइड्स आ रहे हैं ना बार बार, वहाँ पे ये आपको लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। दिस आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डेल्टास ऑफ सुंदरवन, वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट डायग्राम देख लें आप, ये खास बात क्या है, देखो ये प्लांट हो गए। अब देखो जैसे अभी यहाँ पे लो टाइड है, यहाँ लो टाइड है तो पानी काफ़ी नीचे है। ओके, समझ में आ गया। अगर सपोज करो हाई टाइड हो जाएगा ना, तो ये इतना पानी में डूब जाएगा। जब इतना पानी में डूब गया, या मान लो इतना भी डूब गया अगर, ठीक है ना, अब ये इतना डूब, जब हाई टाइड आती है तो इतना ये प्लांट डूब जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मड है ना, शिफ्टिंग मड, कीचड़ होता है, तो ये प्लांट गिर सकता है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए देखें आप, बहुत सारी ये सपोर्टिंग रूट होती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टिल्ट। क्या बोलेंगे आप इसको, स्टिल्ट। डन। अब इस स्टिल्ट में से ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसको आप बोलते हो निमाटोफोर। जैसे देखें ये स्ट्रक्चर है, ये है निमाटोफोर। इसके ऊपर वाले डायग्राम में क्लियर था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखें जैसे ये देखें यहाँ पे है, जो बाहर ये निकला हुआ स्ट्रक्चर है ना कीचड़ से, ये हो गया आपका निमाटोफोर। दिख रहा है वाइट वाइट, ये निमाटोफोर है। निमाटोफोर क्या करते हैं, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, यानी ये प्लांट्स जब हाई टाइड में पानी के अंदर दब जाते हैं ना, तो इनसे ऑक्सीजन लेते हैं। ये निमाटोफोर वर्ड बार बार पूछता है एग्जाम में, और आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया। ओके, सो ये देख लें आप डायग्राम, यहाँ भी आपका ये क्लियर हो गया। ये स्टिल्ट रूट क्या है, निमाटोफोर्स क्या है, और ये हाई टाइड होगा ना, तो ये पानी कम होगा तो नीचे से रूट दिखाई दे रहे हैं। बट व्हेन देयर इज हाई टाइड, तो पानी का लेवल ऊपर उठता है, ये सारा डूब जाता है, देन निमाटोफोर्स का काम लग जाता है। सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन आप पूछेंगे कौन सा फॉरेस्ट है, तो भैया पानी की कमी नहीं है तो एवरग्रीन होगा। इतना कॉमन सेंस आपके पास तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव एवरग्रीन स्पीसीज। कौन से स्पीसीज होंगे एवरग्रीन, क्यों, क्योंकि इनके पास तो कभी पानी की कमी है ही नहीं। देयर ट्रंक्स आर सपोर्टेड बाय ए नंबर ऑफ स्टिल्ट लाइक रूट, यानी यहाँ पे देखें स्टिल्ट लाइक रूट्स हैं जिनको सपोर्ट होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ओके, दे हैव प्रोफ्यूज ग्रोथ। प्रोफ्यूज ग्रोथ का मतलब काफी तेजी से यहाँ ग्रोथ होती है जब ये स्टार्टिंग में ये प्लांट नीचे होते हैं। तो क्यों, आप थोड़ा सोचें। व्हेन देयर इज लो टाइड, अब हाई टाइड आएगा ना तो ये पानी चला गया ऊपर। अगेन वेयर देयर इज लो टाइड दैट वाटर विल रिटर्न, जब वो वाटर रिटर्न होता है तो अपने साथ कीचड़ लेके आएगा, मड लेके आएगा, और जो नया ग्रोथ हो रहा है यार, यहाँ जो सीड जर्मिनेट कर रही है ना, दैट विल बी बरीड अंडर दैट मड। इसको ओवरकम करने के लिए वहाँ के प्लांट्स का ये एडेप्टेशन है, दे हैव प्रोफ्यूज ग्रोथ। वो
छोटे होते हैं ना तो किसी चीज़ को पकड़ के बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ताकि इन शिफ्टिंग मड से वो बच सकें, ये इनका सबसे खास होता है। दे हैव प्रोफ्यूज ग्रोथ विथ स्टैंगल ऑफ क्लाइंबर्स विच इज अडेप्टेड फॉर सर्वाइवल इन द सॉफ्ट एंड शिफ्टिंग मड। ओके, दिस फॉरेस्ट हैव ब्रीथिंग रूट कॉल्ड निमाटोफोर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इनको हेल्प करती है किसमें, सांस लेने में, ब्रीथिंग में मदद करती है। ओके, प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट नेम, आप 2-3 नाम जरूर याद रखें इसका, क्वेर, अमूर, राइजोफोरा, सुंदरी ट्री, पाम, स्क्रू पाइन्स। फॉरेस्ट इज नेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्री विच वी कॉल सुंदरी ट्री, यानी ये जो सुंदरी ट्री है ना, इसके बेसिस पे ही सुंदरबन का नाम पड़ गया सुंदरबन। ओके, डेल्टा का, क्लियर, इसी के बेसिस पे गंगा डेल्टा पे नाम पड़ गया क्या, सुंदरबन, आफ्टर द नेम ऑफ विच द फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरबन इन गंगा डेल्टा। इकोनॉमिकल वैल्यूज, यानी यहाँ के पेड़ का लोग इस्तेमाल किस प्रकार कर पाते हैं, देखें, दिस मैंग्रोव ट्रीज आर यूटिलाइज्ड फॉर फ्यूल्स विच वेयरएज सुंदरी ट्रीज प्रोवाइड हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर्स। यानी जो सुंदरी ट्री है ना, इसका जो लकड़ी होती है ना, वो काफ़ी हार्ड और ड्यूरेबल है, इसका बोट वगैरह का, रिब वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादातर वहाँ जो लोग जो थोड़ा आदिवासी टाइप के हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, यानी वहाँ से उसको लेके आएंगे और ये क्या करते हैं, जला देते हैं पूरी तरह। ओके, सो आई होप आपको ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आई एम वेरी 100% श्योर क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सब कवर कर लिया है। अब आप देखें, नेक्स्ट विल गो फॉर द माउंटेन और माउंटेन वेजिटेशन। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता ही नहीं है, यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन का मतलब ही होता है माउंटेन। ओके, इट मीन्स इनहिबिटिंग माउंटेनस रीजन। द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन हैविंग एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 4000 मीटर। यानी ये पहाड़ की बात कर रहा है, यहाँ पे मिलने वाले जो जंगल है ना, इन पे अलग अलग प्रकार, जैसे बिल्कुल हाइट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ बर्फ़ मिलेगा, मोसेस लाइकन्स मिलेंगे, उसके नीचे आएंगे तो कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, बिल्कुल नीचे आ गए तो मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलता है। तो ये अलग अलग हाइट वाइज जो प्लांट्स मिल रहे हैं ना, दैट इज ऑल प्रेजेंट ऑन दिस माउंटेन और माउंटेन वेजिटेशन। When we talk about the rainfall, here it is 100 to 300 centimeter. Mountains are divided into 3 according to the height. So what are the important characteristics? Forests have fixed species or evergreen and coniferous trees. मैंने बता दिया evergreen कहाँ मिलेंगे, बेस पे मिलेंगे, मिक्स्ड भी मिलते हैं, और कॉनिफेरस थोड़ा सा हाइट पे मिलेंगे, और बिल्कुल ऊंचाई पे कुछ नहीं मिलता है, वहाँ तो स्नो होगा, तो वहाँ मोसेस लाइकन्स मिलेंगे। ओके, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास हैव डिसिडुअस ट्रीज altitude of 1000 to 2000 meter and the moist deciduous forest. Okay, next आप देख लें, यहाँ पे देखो काफ़ी ऊंचाई है, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ स्नो मिलेगा। ओके, यहाँ कोई प्लांट्स नहीं मिलेंगे, मोसेस लाइकन्स मिल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये उससे नीचे वाली बात है, तो यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज मिल रहे हैं। कॉनिफेरस का मतलब इनका जो आप ऊपर वाला देखें पार्ट, वो कोन्स के फॉर्म में है। अब कोन्स से बेनिफिट क्या है, बेसिकली दिस प्लांट्स हैव लेदरी लीफ। लेदरी का मतलब ना, इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो मोटी होंगी और थोड़ी मोटी होती हैं, पतली नीडल लाइक होती हैं। इस पर अगर आइस गिरेगा, बर्फ गिरेगा, स्नो गिरेगा ना, तो वो कोनिकल होने की वजह से ना ये नीचे स्किड करके गिर जाता है, इस पर टिकता नहीं है बर्फ। जैसे ये वाली लीफ देखें, कोनिकल से बर्फ इसके ऊपर टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है, और इसलिए बच पाते हैं। नॉर्मली अगर दूसरा पेड़ होगा ना, उसके ऊपर बर्फ वेट करेगा और वो ब्रांचेस टूट सकते हैं। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर। ओके, आई होप ये वेजिटेशन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम। एट द हाइट ऑफ, यू सी एट द हाइट ऑफ नियरली 1500 to 1750 मीटर कॉनिफरस ट्रीज और चीर पाइन आर फाउंड। ओके, ये ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा मिलेगा, बिल्कुल ऊंचाई पे तो कुछ नहीं मिलता है। 1500 से 1750 तक आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे। हाइट ऑफ 22 to 2250 to 3000 ब्लू पाइन्स एंड स्प्रूस आर फाउंड। At higher altitudes, alpine forest grasses are found up to the snow line where mosses and lichens are present। यानी बहुत ऊंचाई पे आप चले जा रहे हो, वहाँ पे सिर्फ बर्फ मिलेगा, मोसेस लाइकन्स मिलेंगे। खास बात क्या है इसमें, यही था। नेक्स्ट, दिस फॉरेस्ट इन टेम्परेट एंड हायर रीजन्स आर कॉल्ड सोलास। यानी इन फॉरेस्ट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम देते हैं। देख लेना, ये अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन उठाएगा तो ये वर्ड पूछेगा कि टेम्परेट रीजन्स में जो और हायर रीजन्स में इन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट को क्या नाम देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए सोलास, इन नीलगिरीज एंड अन्नामलाई एंड पनाली हिल्स। यानी इनको कौन सा शब्द देते हैं, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो ये 16 वर्ड आप याद रखेंगे। MCQ में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए तो वो पूछ सकता है।
ट्रीज इसके अंदर मिलने वाले, जो वहाँ पे मिलने वाले ट्रीज हैं वो कौन से हैं देख लें आप, मंगोलिया, लॉरेल, चिंकोना, वाटल, प्लम्स एक्सेट्रा, दिस आर द बेसिकली ट्रीज विच आर फाउंड देयर। सो आई होप ये आपका जो सिलेबस था जिसके हिसाब से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने कवर अप किया है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अब देखो आप यहाँ से 5 to 6 या 7 मार्क्स तक पढ़ चुके हो। नीचे है जो सबसे खास बात देखें, ट्रीज और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इनसे वो 3 to 5 मार्क के क्वेश्चन उठाता है, तो यहाँ हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के लिए जैसे ये ट्रीज और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछता है, वो बार बार पूछता है इबोनी क्या, इबोनी की लकड़ियों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आपने तो क्वेश्चन पेपर देखा ही होगा 10 साल का, तो मैंने उसको यहाँ से कवर अप कर लिया है, जल्दी से देखें आप। फर्स्ट वी गो फॉर द ट्री इबोनी, इट इज यूज फॉर ऑर्नामेंटल कार्विंग। ओके, लकड़ियों पे चित्रकारी करते हैं ना खूबसूरत, वही इबोनी का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, म्यूजिकल जैसे पियानो वगैरह हो गया, उसको बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स गुड एंड पियानो कीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया। रोसवुड यूज फॉर मेकिंग डोर, विंडो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर मेकिंग मार्शल आर्ट वेपन्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको थोड़ा ये रटना होगा, ठीक। यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, शिप बिल्डिंग, रेलवे कैरेज, स्लीपर्स एंड ब्रिजेस, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सैंडलवुड, ये अगर पूछे तो आप तो बल्ले बल्ले तुरंत आंसर कर दोगे। एरोमेटिक माने खुशबू होता है, अच्छा स्मेल, दैट इज एरोमेटिक सब्सटेंस। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मेकिंग स्टैट्यूज ऑल्सो। सॉल की बात करें, ये काफ़ी वजन होती है लकड़ी, सखुआ वगैरह की लकड़ी इसी को बोलते हैं। इट वुड इज हार्ड वुड, हैवी टफ, यूज फॉर मेकिंग रेलिंग ऑफ द ब्रिजेस, डोर पोस्ट एंड रेलवे स्लीपर्स। ये काफ़ी भारी और बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। पुराने घर होंगे ना आपके ऊपर, जो छत के नीचे लगाई जाती है वो यही लकड़ी होती है। ओके, प्लास, दिस इज यूज फॉर ईयरिंग, सिलेक, वर्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। नाउ विल गो फॉर द पॉइंट नंबर 7, दैट इज इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्स्ट बेर जो था, इट इज ईटन रॉ, यूज फॉर मेकिंग लेग्स ऑफ द बेडस्टेड, बोट रिप्स, हम तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं। बबूल, इसके बार्क और गम का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए। नीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकिंग मेडिसिन्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। देवदार, मीडियम वेट, कंस्ट्रक्शन, रेलवे स्लीपर्स, बीम्स, फ्लोर्स। आपको थोड़ा ये रटना होगा भैया, आपको ये थोड़ा याद ही करना होगा। सुंदरी, दिस इज हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर फॉर मेकिंग बोट्स। मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके जरूर रट लें, ये पूछता है ये बार बार। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नाउ सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल। ओके, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो खास बातें हैं, जो ट्रीज के कंसर्न में पूछता है 3-3 नंबर का क्वेश्चन, वो हमने कवर किया है। आपको 3 या 4 पॉइंट मिनिमम यू हैव टू लर्न दैट। फर्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द फॉरेस्ट विद द इन्वायरमेंट, यानी फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। सिर्फ मैंने जो हाईलाइट किया है वो वर्ड्स याद रखने हैं और कुछ नहीं। फर्स्ट, फॉरेस्ट एक्ट एज अ मॉडरेटर ऑफ द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट को क्या करता है, मॉडरेट करता है वाटर वेपर की सहायता से। इट प्लेस डोमिनेंट रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस करके। और ये मॉडरेटर ये वाटर वेपर की सहायता से, ट्रांसपिरेशन वगैरह से, जैसे मान लो वाटर वेपर है ना, अगर काफ़ी गर्मी है तो ट्रांसपिरेशन, यानी जहाँ पेड़ है ना वहाँ चले जाओगे तो ठंडा हो जाएगा। काफ़ी ठंड है तो पेड़ों के अंदर से ट्रांसपिरेशन होगी तो वेपर आएगा, यानी वहाँ पे थोड़ा गर्मी लगेगी, तो ये मॉडरेटर का भी काम करता है। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन कैसे रोकेगा आप बताओ। इसकी जो रूट्स है ना वो सॉइल को बहुत तेज़ी से पकड़ के रखती हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू अंडरग्राउंड पर्कुलेशन ऑफ वाटर, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये जमीन हो गया, ये जड़ है, तो जड़ें क्या करती हैं, रॉक्स वगैरह को तोड़ देती हैं, जिससे पानी अंदर सिंक कर जाता है। अब जो इसकी पार्ट्स हो गए, जैसे लीफ हो गए, स्टेम हो गए, वो गिर के सड़ रहे हैं, दे विल प्रोवाइड ह्यूमस। सो रिलेशन विद द फॉरेस्ट विद द एनवायरमेंट इज डन। नेक्स्ट, नीड टू कंजर्व, वाई देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट है वो बहुत तेजी से घट रहे हैं, इसका कारण बताएं। फर्स्ट, फॉरेस्ट को घटने का कारण, फर्स्ट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, और इसलिए जो फॉरेस्ट है ना बेसिकली दैट इज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। हम लोग जब छोटे थे तो काफ़ी बाग था, मैं बोला आपको, हर जगह खेल लेते थे, लेकिन अब हर जगह कहीं बाग बचा ही नहीं है, सब एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग जानवरों से नुकसान है। ओके, डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, ये जानवर जाते हैं फॉरेस्ट को, वो खा भी जाते हैं, पहला नुकसान। दूसरा, उनके पैर से सॉइल इरोजन भी हो जाता है। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द टिम्बर, सिंस आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग विद द अलार्मिंग रेट, भारत फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में, तो लकड़ी चाहिए ना सबको, फॉर फर्नीचर्स, फॉर डोर, विंडोज, टेबल, सब चीज़ के लिए। तो ये कहाँ से आ रहा है,
we are dependent on forest for that, so forests are getting destroyed. Next, effect of the deforestation. देखिए फर्स्ट, यानी फॉरेस्ट के कटने का असर क्या है, जितना मैंने पॉइंट लिया है सब आपको याद करना है, कोई पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. फर्स्ट, इट हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी फॉरेस्ट ही कम है तो जो फॉरेस्ट से हमको प्रोडक्ट मिले ऑब्वियस है वो घट जाएगा. सेकेंड, सॉइल इरोजन हैज इंक्रीज, यानी सॉइल इरोजन बहुत तेजी से बढ़ गया है. थर्ड, सिल्टेशन हैव कॉज्ड फ्लडिंग विद डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड लिविंग बींग्स. सिल्टेशन का मतलब होता है जैसे सपोज करो रिवर बेड हो गई, सपोज करो ये रिवर हो गई, ठीक है ना. अब आपने सॉइल पेड़ों को कट कर दिया तो जो मिट्टी आ रही है ना रेनफॉल वाली, इससे नीचे जो रिवर बेड्स हैं वो भर रहे हैं, अब फ्लड आ रही है ना तो वो काफ़ी दूर तक फैल जा रही है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको. नेक्स्ट, इट हैज़ कॉस्ट ड्रॉट, सूखा पड़ जा रहा है बिकॉज देर इज नो प्लांट्स, नहीं है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं है तो बारिश नहीं होगी, ये तो साइकिल ही है. ओके, प्लांट्स क्या करते हैं, पानी वाटर के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करके लीफ के थ्रू ऊपर छोड़ते हैं और जिससे बारिश होता है, तो ट्रांसपिरेशन ही नहीं है तो सूखा पड़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग हैज इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट से क्या संबंध है, प्लांट्स आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. आपने प्लांट्स को कट कर लिया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा. ओके, नाउ व्हाट आर द कंजर्वेटिव मेजर्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो. फर्स्ट, हमको क्या करना चाहिए, वी शुड इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट. सारा पॉइंट 3-3, 4-4 पॉइंट आपको याद ही रखना है. 3 नंबर का होगा तो यू विल हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, 2 नंबर का होगा तो 2 पॉइंट, याद रहे ये बात. एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग न्यू ट्रीज अराउंड द इंडस्ट्रियल यूनिट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा करने से ना नॉइस पोल्यूशन भी घट जाता है. नॉइस पोल्यूशन घटेगा ना, ट्रीज में टकरा के आवाज़ कम होगी, ठीक है ना, और डस्ट वगैरह भी ट्रीज क्या करते हैं, रोक लेते हैं. इसलिए यहाँ पे एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द इंडस्ट्रियल यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ द ट्रीज. एग्जाम्पल ले लें आप डाई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे वो सैंडलवुड, उसको ही अगर आप काट रहे हो, एक ही अगर सपोज करो ट्री पसंद है आपको, उसको काटते जा रहे हो तो एक दिन खत्म हो जाएगी, दैट विल बिकम एक्सटिंक्ट. सो इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग शुड नॉट बी डन. यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, फॉर एग्जाम्पल CNG, LPG वगैरह का आप यूज़ करें ताकि एज ए फ्यूल आप लकड़ी का इस्तेमाल ना करें. पीपल पार्टिसिपेशन, यानी लोगों को भाग लेना जरूरी है. एंड प्रॉपर लेजिस्लेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. मीन्स सब लोग, पूरे इंडिया के लोगों को दे शुड पार्टिसिपेट. देयर शुड अ लॉ शुड बी मेड रिगार्डिंग द ट्रीज. लॉस तो बहुत बने लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता है. दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली एंड दिस इज द ओनली बेस्ट वे टू कंजर्व फॉरेस्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सोशल फॉरेस्ट्री. ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन होता है सोशल फॉरेस्ट्री क्या है और उसका डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव्स लिखें. यही क्वेश्चन होता है. एग्रो फॉरेस्ट्री, ये दोनों लास्ट पॉइंट है, अब ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है. देखिए फर्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सोशल फॉरेस्ट्री, सी सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स व्हाट. थोड़ा इसका डिफिनीशन थोड़ा सा लेंथी है, आपको समझना होगा, लेकिन यही डिफिनीशन सेम लिखना भी होगा एग्जाम में. मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, यानी एफोरेस्टेशन का मतलब प्लांट लगाना बंजर जमीन पे. मैनेजमेंट यानी मैनेज करना, और प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाना. डिफॉरेस्टेड लैंड यानी जो बैरन लैंड है, यानी जहाँ पे बंजर जमीन है और जहाँ पे पेड़ थे पहले अब काट दिए गए हैं, वहाँ पे पेड़ों को लगाना, सोशल फॉरेस्ट्री. विद पर्पस टू हेल्प द इन्वायरमेंट, अब ऐसा करने से आप इन्वायरमेंट को भी मदद करेंगे और सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और जो गांव के लोग हैं, यानी गांवों में अगर ऐसा किया जाए तो उनका भी डेवलपमेंट होगा. दिस इज सोशल फॉरेस्ट्री. ओके, इसमें बेसिकली सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरा गांव इन्वॉल्व होगा, पूरा एक पर्टिकुलर लोकल एरिया इन्वॉल्व होता है जिससे पर्टिकुलर पूरे सबको बेनिफिट होता है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री. Objectives are first, it increase the environment, improve environment for protecting farms from adverse climatic conditions. ये पहला एम क्या है सोशल फॉरेस्ट्री का, कि ऐसा माहौल बनाया जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि जो फार्म्स हैं उनको एडवर्स कंडीशन से बचाया जा सके, जो जरूरत हो सके आप उसको करें. सेकंड, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वुड फॉर्डर फॉर लाइफ स्टॉक, टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज. यानी जो लोकल इंडस्ट्री है, जैसे सपोज करिए आपका एक छोटा सा गांव है, उसमें आपने छोटा सा एक जंगल लगा दिया है, मतलब कुछ ट्रीज लगा दिए हैं. अब
जब आपको थोड़ी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने इस गांव वाले जंगल से ही निपटा लेंगे। अब आपको जो मेन फॉरेस्ट है उसको काटने की जरूरत नहीं है। तो मेन फॉरेस्ट हमारा बचा है अगर हम अपने लोकल एरिया में अगर फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो, ठीक है ना। इट इंक्रीजेस द नेचुरल सीनरी, प्लांट्स हैं सुंदर लगते हैं देखने के लिए और घूमने के लिए लोग वहाँ चले जाएंगे। टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द अनस्किल्ड वर्कर्स, वहाँ कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स को काम भी मिल सकता है, ठीक है ना, उनको देखभाल करना, लकड़ियों से संबंधित कोई काम। टू डेवलप लोकल कॉटेज इंडस्ट्री फॉर लोकल पीपल, यानी जो लोकल लोग हैं ना वहाँ वो उसके प्रोडक्ट से कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। इट इन्हांसेस यानी इंक्रीजेस द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल और अर्बन पीपल, यानी कुछ लोगों को उनसे अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना उसके प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करके बढ़ाने का मौका मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सोशल फॉरेस्ट्री। विल गो फॉर द एग्रो फॉरेस्ट्री नाउ। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सबसे खास तो यही है, एमसीक्यू में पूछता है आपका, व्हाट इज इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इट इज ए इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच का जो कड़ी है ना वही आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री है। ओके, इट इज डिफाइंड एज, देख लें थोड़ा डिफिनीशन, अ सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम दैट मेंटेन्स और इंक्रीजेज द टोटल यील्ड बाय कंबाइनिंग फूड टुगेदर विद द फॉरेस्ट। यानी देखो यहाँ पे जंगल भी लगाया, यानी ट्रीज को भी हमने प्लांट किया है और यहाँ पे आपके क्रॉप्स भी हैं, तो इन दोनों को मिला के ही अब दोनों फायदा होगा। यानी आपको ये सपोज करो, अगर एग्जांपल के लिए लेना, अगर रबर का ट्री है तो यहाँ से आप लेटेक्स सेल करके पैसा कमा लोगे और यहाँ आपने क्रॉप लगा दिया है इससे भी पैसा कमाएंगे। तो यही है, इट इज़ अ सस्टेनेबल लैंड यूज, यानी जो ज़मीन है ना इसका आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब इसमें आपने कंबाइन क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्रॉप विद द फॉरेस्ट एंड लाइव स्टॉक रेंचिंग ऑन देम सेम यूनिट। अब जरूरत पड़ने पर ना लाइव स्टॉक्स को भी हम पाल सकते हैं, एग्जाम्पल शिप्स हो गए, काऊ, बेफेलोस, इन जानवरों को भी हम पाल सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट टेक केयर ऑफ सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकल पीपल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दैट लोकल एरिया। अब ऐसा करने से, क्रॉप उगाने से, फॉरेस्ट उगाने से और जो लाइव स्टॉक है इनको रेयर करने से जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना इनका इनकम इंक्रीज होगा, तो उनकी इकोनॉमिक और इकोनॉमिकली दे विल बी मोर साउंड, थोड़ा उनको बेनिफिट मिलेगा इससे। एंड इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दैट लोकल एरिया विल ऑल्सो इन्हेंस। इकोलॉजिकल कंडीशन का मतलब फॉरेस्ट होगा तो एयर प्यूरिफाई होगा, ट्रांसपिरेशन से रेनफॉल होने का चांसेस होगा, और लाइफ स्टॉक से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी मेंटेन हम कर लेंगे। सो दिस इज बेस्ट type of forestry. Now objectives of agroforestry, 4 points, you have to learn all the points so that you can write in the examination. First, it discourages deforestation, यानी प्लांट जो कट करते हैं ना इसको इसके खिलाफ है। reduces pressure on the forest for obtaining, यानी जो हमारा मेन फॉरेस्ट है उस पर ये क्या करता है, ये टोटली बैन्स, इसके हिसाब से आपको लकड़ियाँ नहीं काटनी है, ओके, फॉरेस्ट वगैरह के लिए। नेक्स्ट, इट रिस्टोर्स द फर्टिलिटी बाय चेकिंग सॉइल इरोजन, यानी यहाँ पे प्लांट्स भी हैं तो इस ऐसा अगर आप तरीका यूज करें एग्रो फॉरेस्ट्री का, सॉइल इरोजन कम होगा। बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म रिसोर्स द इकोलॉजिकल बैलेंस टू बी मेंटेन, यानी अगर बेसिकली बाय यूटिलाइजिंग द प्रॉपर फार्म रिसोर्स इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी मेंटेन। एंड द लास्ट पॉइंट, टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय इनहेंसिंग और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द वुड एंड अदर प्रोडक्ट्स, यानी क्रॉप्स भी किसान बेच रहा है, फसल भी और लकड़ियां भी बेच रहा है, और अगर एनिमल्स हैं तो उनका भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी किसान की क्या होगी, दूर होगी। ये खास था किसका, एग्रो फॉरेस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड में भी देख लेते हैं। फर्स्ट, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज ऑन द लैंड विच आर नॉट प्रीवियसली कवर्ड विद द फॉरेस्ट, यानी अगर मान लो कोई ऐसा जमीन है जैसे बैरन लैंड है जिसका कोई यूज नहीं है, वहां पहले प्लांट नहीं थे, ट्रीज नहीं थे, आप वहां नया प्लांट लगा रहे हो ना, दैट इज एफॉरेस्टेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, बोला कि जो इंसान पेड़ों को काट देते हैं ना, और थिनिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर, यानी लकड़ियों के लिए जंगल को काटा जाए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए या ग्रेजिंग लैंड के लिए, वही हो गया डिफॉरेस्टेशन। कटिंग को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। नाउ फार्म फॉरेस्ट्री, ये बार बार पूछता है, व्हाट इज फार्म फॉरेस्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज ऑन द फार्म टू प्रोड्यूस सेलेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सेलेबल प्रोडक्ट्स, यानी आप फार्म पे ट्रीज को उगा रहे हैं ताकि उनसे कुछ हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम बेच सके। सेलेबल प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, ठीक है ना। अब देखो कौन से सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक टिम्बर हो गया, टैनिंग हो गया, चारकोल, टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर फॉर स्टॉक्स, मतलब ग्रोइंग ट्रीज ऑन अ फार्म
और लैंड टू प्रोड्यूस सेलेबल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसा आप प्रोडक्ट वहाँ से बेचने लायक प्रोडक्ट यूज़ वहाँ आप ट्रीज को ग्रो करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज फार्म फॉरेस्ट्री, आप इसको याद कर लेंगे। ओके, एंड द लास्ट इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब रीइस्टेब्लिशिंग द प्लांट फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग अ ट्रीज ऑन एरिया विच हैज़ बीन रिमूव्ड। खास बात देखें, हैज़ बीन रिमूव्ड यानी यहाँ पेड़ पहले था, अब काट दिया आपने इसको, यहाँ से हट गया ये, फिर इसी जगह पे दूसरा प्लांट लगा रहे हो, दिस इज रीफॉरेस्टेशन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एफॉरेस्टेशन में वहाँ पहले प्लांट नहीं था, रीफॉरेस्टेशन में प्लांट कट था काट दिया था इंसानों ने, फिर दोबारा वहाँ लगा दिया, दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यू या किसी फॉर्म में आए तो इजीली आप इसको डिस्टिंग्विश कर लें। सो आई होप ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए और आपको ये जितना भी टॉपिक हमने बताया आज वो समझ में आया। So please, if you are a new viewer, then please subscribe and share my channel and like and comment also. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.